शिरडी साईं विश्व साईं। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. Gyanantva Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinamupamasravastamam Jyesvarajam Brahmanam Brahmanaspata Arashrunvannotibhiseda Sadhanam Prano Devi Saraswati Vaje Bhirvajinivati Dhinama Vipriyavatu Shri Mahaganathipataye Namaha Shri Mahasaraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Ghanashyama Sundara Shridhara Arunodaya Zara विघ्न विनाशक गणनाथा विद्यादायक गणनाथा सिद्धि प्रदायक गणनाथा विद्या सिद्धि बुद्धि प्रदायक विजय गणेश विनायक ओम गम 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 ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गुरवे नमः राजा रामचंद्र भगवान जय बोलो शिरडी साईनाथ महाराज की जय बोलो सीता माता की पवन सुत हनुमान की Sitaram Kalyan was one of the important functions. Ramanavami was very important function. He celebrated. So that is a tradition. Right now, you can imagine Shirdi will be full with lakhs of devotees trying to get darshan of Baba on this day. So we are both temples, both here and in Israel, we are doing in a very big way the celebrations of Sitaram Kalyana.
श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारध द्विषते सोमराजन्। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। प्रार्थनं कृत्वा See, Baba is very happy in this Sri Ramanavami Kalyana Mahotsavam with garlands. He is Chirumandahasam. He is smiling face in the today. He is very happy. Watching and listening these mantras is the very good punyam for all. Raja Ramachandra Bhagavan ki, Sita Mata ki, Pavana Sutta Hanuman ki. Sindhu Kaveryau Jalesmin Sannidhim Guru Pujartham Durtakshayakarakah Puja Dravyani Samproksha Devam Atmanancha Samproksha. Ganesh Maharaj ki Jai. In the beginning is we invoke Ganesh, that's what we all participated. Now this is Punyaha Vachanam, they are sanctifying the entire mandap, and then they are going to sprinkle the sanctified water on the deities, then on all of us. That's the function going on right now. Om Punyaham Dirghamayurastu Shiva Apasantu Saumanasya Mastu Saha Kutumbaya Shuddhi Karmane Mahajanan Namah Manashuddhi Vachashuddhi Shariraka Shuddhi. These are the mantras for the Manashuddhi, Vachashuddhi and Shariraka Shuddhi. These three are called Trikaranas. Who are performing these Trikarana Shuddhi? Any puja, anything that is gives sapphalitam very quickly. That is the specialty in this the Punyaha Vachanam. Gotrabhivruddhirastu Vamshabhivruddhirastu Sarvasampadastu. According to Ramayana, Valmiki Muni ऐसा कहे, रूप संहननम लक्ष्मीम, राम जी का सौंदर्य देख के मुनिगण अवाक्य वाक्य बोलने के असमर्थ है। भ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। रामचंद्र भगवान की जय। इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्था। रामचंद्र भगवान की जय। मात की, पवन सुत हनुमान की। श्री सीता रामचंद्र स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। यज्ञोपरजत यज्ञोपवीतम सुवर्ण यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये। श्रीमान सिंहगिरीश्वरः करुणया द्यात् सदा मंगलम्। सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना, शुभलग्ने सावधाना, श्रीरामचंद्र ध्यान सावधाना। चक्रधरश्चकोरमिथुनं चामीकरं चामरं, चैत्रश्चैत्ररथं च चन्दनतरुचाम्पेयकं चन्दनं। चण्डांशुश्च मरीमृगं विलसिता मणिश्चन्द्रिका। डिम्भः कुम्भडि कुम्भकुम्भगहनो इंकारमोडिंडिमो। डोलाडुम्बुडुडुण्डु भाण्डुवलय कुर्वन्तु वां मंगलम्। ఇంకా 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 సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామాయ నమః. రామ 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 జయ కళ్యాణ రామ. రామ 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 జయ కళ్యాణ రామ. రామ 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 జయ కళ్యాణ రామ. We are blessed. You cannot enter into a mandir. We all know that. We believe in that.
So coming here and witnessing the Kalyanam of the Lord Shiva, Lord Rama and Sita Devi is an incredible blessing for all of us. You can touch the statue, you feel, sometimes he's warm, everyone feels that. That means he's sitting here blessing us. Sometimes he goes into yoga mudra. Then the whole statue becomes cold, even though it is 80 degrees in the hall here. So you witness these miracles here, and Baba's blessings to one and everyone here. You make a wish, he is going to fulfill that. Today he is in a very happy mood today. ये पाद असाधारण है, ये पाद दुर्लभ है। भगवान का नमस्कार पादों के करते, पाद चरण कमलों के करते। अधानंत वीर्यस्य श्रीमदादि नारायणस्य सुशीलाय सुधीमते प्रयतोहं प्रयच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये कन्यादानं तुभ्यमहं संप्रददे। आनंद कौंद कौशल चंद्रदश रघुनंद आनंद कौंद कौशल चंद्रदश नंदनं श्रीरामचंद्र कृपाल भजन ओम श्री साई राम गुरुदेव दत्त। 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 गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। ओम श्री साई राम 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 गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। Dear divine souls, I am very happy physically to come again to this divine shrine. This is the magnetic field, universal magnetic field, having the universal Guru as the main deity here, who is ruling over the universe, who is responsible for the creation of the universe, who is maintaining the universe, and who is cutting away, taking away all the negative forces and merging all the negative forces in himself. So this Brahma, Vishnu, Shivatmaka, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Samaikya, Shakti Swarupa, Shirdi Sainath. बोलो साईनाथ महाराज की। फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए मालसापति, अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, ये भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपूरला जायाचे जायाचे तिथेच मजला रायाचे, तिथेच मजला रायाचे, गरते माझ्या रायाचे। सब मिलकर गाने लगे। मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वो मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने और वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, दर्शकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहां थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। ये सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा ऊदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह,
बाईजाबाई की सेवा और अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहां विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साई राम गुरुदेव दत्त। के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर रचित श्री साई सत चरित्र अध्याय 8वां। मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा शुश्रूषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद पर प्रेम। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमाड़ पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और मालसापति के साथ किस प्रकार शयन करते और खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका अब वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र और आकाश में निवास करते और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती हैं। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वो ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव ही नहीं। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं और पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोष युक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त और नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अंशतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर और सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर उसकी उपेक्षा करें, तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझ और उसका मोह करेंगे, तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वो निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका, और इसी कारण उसने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की एक विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं और ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष और संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वो किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है,
ऐसी ही धारणा कर हमें अपने ध्येय की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय, आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वथा ध्यान करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना? अधिक सफलतापूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सदगुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वो इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सदगुरु की कृपा से हो सकती है, वो ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुह्य उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति और उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सदगुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। ये कार्य वे इस प्रकार करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते और दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिन पाट में लेते और भात और रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते? जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं, मानो उनकी जिह्वा में स्वाद बोध ही ना हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते और किसी दिन 12 बजे तक। वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी भगाया नहीं। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु कभी किसी ने उसे रोका नहीं। जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों कर रोकते? ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता? परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन और गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना इस प्रकार है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा और श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी।
प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। मां और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। शिरडी साई विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. शुभम भवतु। ओनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिप्रियवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। घनश्याम सुन्दरा श्रीधरा अरुणो